A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the important topic and the important ratio which are related to the very important chapter, that is an accounting ratio. You know very well what is the meaning of accounting ratio? The ratio by which we calculated the different aspects of the accounting will be known as an accounting ratio. Yeah, in other words, we can say that the accounting ratio means the ratio which are based on the accounting information. And there are basically four types of the accounting ratio: profitability ratio, liquidity ratio, okay, and activity ratio, which is also known as a turnover ratio, and last one is a solvency ratio. And in the last video we discussed the first two type of the ratio, that is an uh, solvency ratio and liquidity ratio. So basically, you know very well what is the difference between the liquidity ratio and the solvency ratio. Liquidity ratio establishes the relationship between the current assets, current liability and quick assets. It means in the current ratio we are talking about the current assets, current liabilities and quick assets. Whereas in the solvency ratio we analyzed about the firm's long-term liabilities and their source for the payment of long-term liabilities. So basically, in short, we can say that liquidity ratios analyze the short-term solvency position of the business, whereas solvency ratio analyze the long-term solvency position of the business. यानी आई एम द बिजनेस एंड विद द हेल्प ऑफ द सॉल्वेंसी रेशियो हम पता करेंगे हमारे बिजनेस का लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसा है, कि बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को पे करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है. उसी तरह से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए हम लोग यूज करते हैं द लिक्विडिटी रेशियो. और लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक और रेशियो आता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो. ओके, सो इनके डिफरेंट आइडियल्स भी हैं, जैसे करंट रेशियो के 2:1 है, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो के हैं 1:1, और एसिड टेस्ट रेशियो जैसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का है 0.5:1. और हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो में पढ़ा डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एज वेल एज the proprietary ratio. Proprietary ratio shows the relationship between the shareholder fund and total assets. So आज हम लोग कुछ challenging questions solve करेंगे related to this chapter, that is an accounting ratio. So the question which are based on the liquidity ratio, and the question is a current liability of a company is 3,50,000. Current liability of the company is 3,50,000. And the current ratio is 3:1. Current ratio will be a 3:1. Asset test ratio. Asset test ratio means asset test ratio is also known as a liquidity ratio. Liquid ratio. जिसे हम लोग बोलते हैं क्विक रेशियो is 1.75:1. Find out the value of current assets, liquid assets and inventory. Liquid assets and inventory. Basically, you know very well, the very important term is inventories. Inventories कैसे find out करेंगे? And you know very well कि inventories is the difference between the current assets and liquid assets. Inventory क्या करता है? Current assets और liquid assets के बीच में difference को express करता है. ठीक है, तो अगर हमें current assets पता है, liquid assets पता है, तो हम easily क्या पता कर लेंगे? Inventories पता कर लेंगे. तो चलिए इसके solution part पे चलते हैं. इस क्वेश्चन की इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉजिकली चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी. पहला लॉजिक क्या है, पहले आप देखिए ध्यान से. द फर्स्ट लॉजिक इज दैट एसिड टेस्ट रेशियो इज गिवन. एसिड टेस्ट रेशियो मींस द क्विक रेशियो. फॉर्मूला क्या होता है क्विक रेशियो का?
quick assets the divided by current liability, and asset test ratio is 1.75:1, and quick assets is not given in the question, but current liability is given in the question is 3,50,000. So with the help of this formula, we find out the quick assets. Quick ratio assets equals to 3,50,000 into 1.75. So the liquid assets or quick assets, quick इसमें हम liquid assets भी कह सकते हैं. That is then 3,50,000 into 1.75 is 6,12,000. 6,12,500. ये सर आ गया. एक बात तो समझ में आ गई हमको. दूसरी बात आपको क्या समझनी है कि हमें लिक्विड एसेट्स के साथ साथ एक आंसर आ गया. लिक्विड एसेट्स के साथ साथ हमें और क्या फाइंड आउट करना है? करंट एसेट्स. और करंट एसेट्स कहां से इज कैलकुलेट हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ करंट रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ाइए. करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. करंट रेशियो इज 3:1. करंट एसेट्स विल बी नहीं पता, एंड करंट लायबिलिटी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इज 3,50,000. So current assets equals to 3,50,000 into 3, that is in 10,50,000. So current assets 10,50,000, whereas liquid assets 6,12,000. तो दो तो आंसर आपके आ गए. करंट एसेट्स कितना आ गया? 10,50,000 और लिक्विड एसेट्स आ गया आपका 6,12,500. फाइनल आंसर आपको इन्वेंट्री पता करना है. तो इन्वेंट्री क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड liquid assets. So inventories will be a 10,50,000 minus 6,12,500. तो डिफरेंस आएगा वो इन्वेंट्री आ जाएगा. और इन्वेंट्री कितनी आएगी? 1 लाख. इन्वेंट्री विल बी 4,37,500. सो यहाँ पे आपके 3 आंसर आ गए हैं. इसको नोट डाउन कर लीजिए. सर इस तरह के भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं? एकदम आते हैं, एकदम 100% इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे. नोट डाउन कर लीजिए. चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे. So the next type of the question which is also related to the challenging question related to the liquidity ratio, और थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं? तकलीफ पहुंचा सकते हैं. ठीक है. एंड क्वेश्चन विल बी a working capital. The working capital of a company is 30,000, whereas a current ratio will be a 2.5:1 and 2.5:1. This is a current ratio. And the question is asking to calculate current assets, current liability and asset test ratio. और ये मान के करिए कि इन्वेंट्री कितना हो? Inventories will be 26,000. So this is a short and simple question. और इस क्वेश्चन के हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है? द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड एसेट टेस्ट रेशियो. सो यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल इज गिवन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? सो यू नो वेरी वेल, इन द वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू द करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. और वर्किंग कैपिटल की अमाउंट कितनी दी हुई है? 30,000. ओके. एक इक्वेशन आपको समझ में आ गया कि CA माइनस CL इज इक्वल टू 30,000. दूसरा इक्वेशन क्या करा है कि करंट रेशियो इज 2.5:1. सो वी कैन ऑल्सो से दैट
current ratio means current assets divided by current liability equals to 2.5:1. So we can also say that the current assets equals to 2.5 current liability. Yes, वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है. देख लीजिए, अगर आपने ये पकड़ लिया ये वाला स्टेप कि करंट रेशियो इज 2.5:1, so we can also say that current assets by current liability equals to 2.5:1. इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 2.5 CL. आप इस वैल्यू को यहां पुट कर दो. क्या था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 30,000. सो करंट एसेट्स इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट्स की जगह क्या हो जाएगा? 2.5 CL माइनस CL इक्वल्स टू 30,000. सो 2.5 में से 1 CL गया तो कितना बचा? 1.5 CL इक्वल्स टू 30,000. सो CL इक्वल्स टू 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5. डिवाइड करिए इसको तो ये आ जाएगा आपका 45,000. मेरे अकॉर्डिंग 45,000 आना चाहिए. ओके, इसको फिर से सॉल्व 15, सॉरी ये कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे. सो ये हो जाएगा 20,000. सो करंट लायबिलिटी विल बी 20,000. यस, आगे अब करंट लायबिलिटी आ गया तो करंट एसेट्स भी आ जाएगा. करंट लायबिलिटी आ गया 20,000. सो करंट एसेट्स कैसे आ जाएगा? अब वहां आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. कैसे आ जाएगा करंट एसेट्स? करंट एसेट्स कैसे आएगा? फॉर्मूले में देखिए कि करंट एसेट्स इक्वल्स टू 2.5 इंटू CL. CL की वैल्यू पता चल गई. तो CL इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाई CL. CL कितना है? 20,000, 50,000. और आप चाहें तो आंसर भी चेक कर सकते हैं. कैसे? 50,000 माइनस 20,000 इज अ वर्किंग कैपिटल. यस, 30,000. अगेन एसिड टेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा? उसके लिए थोड़ा सा वर्किंग दिखा दीजिएगा पेपर में. एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल्स टू क्विक रेशियो डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स. क्विक एसेट्स का मतलब क्या होता है? क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. क्विक एसेट्स कैसे निकलता है? जब हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दें. यानी जब हम करंट एसेट्स मतलब कितना? 50,000 में से इन्वेंट्रीज माइनस कर दें 26,000 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी इज 20,000. सो ये कितना हो जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000. सो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे सो हमें मिल जाएगा 30 से 30, 12, 10. और भी इजी हो जाएगा ये अगर आप इसको 24, 12 से डिवाइड कर दे 2 से. 12, 10, 5, 6. सो द रेशियो इज 6:5. लेकिन आपको पता है कि इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट आपको 1 रखना पड़ता है. आप हमेशा याद रखिएगा कि आप ऐसे आंसर में छोड़ के नहीं आ जाएंगे 6.5 ये आपका एसिड टेस्ट रेशियो. नहीं, आपको इसको 1 के फिगर में, यानी कि आपको 5 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. करंट लायबिलिटी को मुझको 1 में, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 1, 5 से डिवाइड करिए. 5 1 5, 1 5. तो 1.2:1. सो इट इज टेस्ट रेशियो 1.2:1. ये आपका सही आंसर होगा. यस, यानी आपको इतना फ्रैक्शन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. जो मैंने यहां इतना किया है वो करने की जरूरत नहीं है. आपको डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा. डायरेक्ट आपको डिवाइड करना पड़ेगा. कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? तो जो डिफरेंस आया 24,000 इट विल बी डिवाइड बाय 20,000. आप सीधे 20 को 24 से डिवाइड करिए और 24 को 20 से डिवाइड करिए, आएगा 1.2:1. यही आपका फाइनल आंसर. क्योंकि बेसिकली हम लोग 7, 6, 8 तक ये पढ़ते हैं रेशियोज को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. लेकिन यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब नहीं है. यहाँ आपको हमेशा डिनोमिनेटर को 1 के पॉइंट में कन्वर्ट करना ही करना है. 1 के पॉइंट में कन्वर्ट करना ही करना है. सो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद हम कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन पे चलते हैं रिलेटेड टू द सॉल्वेंसी रेशियो. ओके, so let's we move to the few important question related to the solvency ratio. और एक थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे दूं कि solvency ratio में हम लोगों ने कौन कौन से रेशियोज पढ़े थे. सर solvency ratio में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहला कौन सा?
यस, डेप्ट इक्विटी रेशियो जिसका आइडियल होता है 1:1, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड द लास्ट वी डिस्कस द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है अगर एग्जाम में आ गया तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको चारों तरफ दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर कह सकते हो थोड़ा सा आपको लॉजिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी, लाइक अ कॉम्पिटिटर स्टूडेंट। क्या आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए ये क्वेश्चन है कि आपको प्रोप्राइटरी रेशियो बताना है। द क्वेश्चन इज फाइंड आउट प्रोप्राइटरी रेशियो। इंफॉर्मेशन कौन कौन सी गिवन है? इंफॉर्मेशन गिवन है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, इंफॉर्मेशन है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो विच विल बी अ 2:1। मैं 2:1 इसलिए ऐसे लिख रहा हूं जबकि एग्जाम में ऐसे नहीं दिया होगा, ऐसे दिया होगा, सिंपल फ्रैक्शन में नहीं दिया होगा। डेप्ट इज 5 लाख, डेप्ट जो है वो 5 लाख है। वेयर इज इक्विटी, वेयर इज अ इक्विटी शेयर कैपिटल इज, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्ट। मतलब जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 0.5 टाइम्स है किसके? डेप्ट के। ओके, एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल is 25% of equity share capital, and net profit before tax will be a 10 lakh, and rate of income tax will be a 40%. So these are the information, and with the help of these information we have to find out the proprietary ratio. Basically proprietary ratio का फॉर्मूला क्या होता है? proprietary ratio का फॉर्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं। proprietary ratio is equals to proprietors fund, जिसे हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, divided by total assets. Okay, so what is the formula of proprietary ratio? Shareholder fund divided by total assets. Okay, and you can see that इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ओके, एंड टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो कितना दिया है? 2:1। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो मींस डेप्ट अपॉन, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो मींस टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट, and total assets to debt ratio is 2:1. So total assets upon debt will be a 5 lakh. So total assets will be a 5 lakh into 2, that is 10 lakh. So यानी आपने प्रोप्राइटरी रेशियो में एक हर्डल पार कर लिया कि आपको दो चीजें पता करनी थी प्रोप्राइटरी रेशियो में, शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट्स। तो आपने टोटल एसेट्स को फाइंड आउट कर लिया। कैसे? बिकॉज यू नो वेरी वेल टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो है तो फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। लेकिन अगर टोटल डेप्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो है, अगर ऐसे दिया है तो उसका मतलब डेप्ट न्यूमरेटर हो। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी, लेकिन आप मत होइएगा। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू 5 लाख इंटू 2 इज 10 लाख। तो टोटल एसेट्स फाइंड आउट हो गए। अब हमें शेयर होल्डर फंड चाहिए। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। या इसमें जो शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं
शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. ओके, नाउ द इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोला? इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट. 0.5 टाइम्स मतलब कितना गुना है? 0.5 मतलब एक तरह से आधा है. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 5 लाख इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा? 2,50,000. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी अ 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी 25 लाख का 25% इज 6,62,500. यस सर, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं. इक्विटी शेयर निकल गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकल गया. अब हम लोग बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, यानी सरप्लस. सरप्लस क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है? हमेशा आफ्टर टैक्स होता है. यानी हम जो भी यहाँ सरप्लस में प्रॉफिट ऐड करते हैं, वो कौन सा प्रॉफिट ऐड करते हैं? वो हम ऐड करते हैं प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, यानी उसमें से हमें क्या क्या माइनस करना होगा? इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस, डिविडेंड. याद रखिएगा हमेशा. लेकिन इस क्वेश्चन में ना डेब्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ना प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 10 लाख में से 40% माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ना इंटरेस्ट है, ठीक है, ना ही कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है. सीधे इसमें से रेट ऑफ टैक्स माइनस कर दो, यानी 10 लाख में से माइनस कर दो 10 लाख का 40% कितना आएगा? 4 लाख. तो ये आ जाएगा आपका 6 लाख. अब इन सबको ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू 250, 62,500 एंड 6 लाख इज इक्वल्स टू 9,12,500. और अब हम फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देते हैं. शेयर होल्डर फंड इज 9,12,500 divided by total assets will be a 10 lakh. The answer will be a 0.91 is 21. आप इसे इसमें भी परसेंट शो कर सकते हैं, परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं. परसेंटेज में कैसे शो कर सकते हैं इसको? कि यही फॉर्मूले में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 को. प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में भी कैलकुलेट होता है 91.25%. मतलब टोटल एसेट्स में 91.25% किसका पैसा है? शेयर होल्डर फंड का पैसा इन्वॉल्व या एम्प्लॉयड किया गया है. बिकॉज जो लायबिलिटी साइड होती है वो सोर्स ऑफ फंड होता है, पैसा कहां से आ रहा है, और जो एसेट साइड होती है वो एप्लीकेशन साइड होती है, हम पैसा कहां इन्वेस्ट किए हैं. सो ये कह रहा है कि टोटल एसेट्स में 91.25% का पैसा जो है वो कहां से लिया गया है? इट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम दी शेयर होल्डर फंड. नोट डाउन. Let's we solve the one more question from the interest coverage ratio, and it is a very important ratio, you know very well. So question is find out interest coverage ratio. So this is an information कि we have to find out the interest coverage ratio with the help of the following information. And what are the ideal percentage of interest coverage ratio is 6 to 7 times, you know very well. And इसमें information में क्या क्या दिया हुआ है? Information says that net profit after interest and tax, net profit after interest and tax is 63,000. Rate of income tax will be a 50%. Okay, and the question is also says that the 12% debenture and 10% of mortgage loan. So 12% debenture की वैल्यू कितनी है? 50,000 and 10% mortgage loan की वैल्यू कितनी है? 1,50,000. 1,50,000. Okay, so
The amount of 12% debenture will be of 50,000 and amount of 10% mortgage loan will be 1,50,000. इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई. अब हमें क्या करना है, इन सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से, और कोई इंफॉर्मेशन तो मुझे नहीं दिख रहा है, यस ठीक है. सो इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. तो उसके लिए मैंने एक टेबल, आपको याद होगा मैंने दिया था कि वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू ईबीआईटी. ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है. आफ्टर नहीं लेते, बिफोर लेते हैं, और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये टाइम्स में आ जाता है. तो पहले हमें याद होगा, मैंने आपको टेबल बताया था बिजनेस में भी और अकाउंटेंसी में भी. ईबीआईटी में सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, और इसमें से हम फिर माइनस करते हैं टैक्स, तो आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स. मतलब ये जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दी हुई है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कैसी प्रॉफिट है, ये वाली प्रॉफिट. और टैक्स का रेट कितना बोला है, 50%. और इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट दिख ही रहा है आपको, इंटरेस्ट कितना बोला हुआ है, डिवेंचर पे है 50,000 का 12% और 1,50,000 का है 10%. सो 6,000 प्लस 15,000 इट विल बी 21,000. सो इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 21,000. इंटरेस्ट लिख दिया. टैक्स इज 50% ऑफ व्हाट, ईबीटी. ईबीटी का 50% होता है, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स का 50% जो है वो क्या होता है, टैक्स होता है. बट यहाँ ईबीटी इज नॉट गिवन, बट ईएटी तो गिवन है. यानी अगर हम एज्यूम करें कि ईबीटी अगर 100 होता तो टैक्स कितना होता, 50. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना होता, 50 होता. मतलब अगर ईबीटी 1 रुपए भी होता तो उस पर 50 पैसे यानी 50 पैसे टैक्स कट जाता, 50 पैसे अर्निंग आफ्टर टैक्स का. ये कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब 63,000 कितने के इक्विवेलेंट है, 50 के इक्विवेलेंट है अगर एग्जाम्पशन देखें. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ईबीटी मल्टीप्लाई कर दो 100. सो जस्ट डबल कर दो, कितना आ गया, 1,26,000. सो 1,26,000 इज ईबीटी. और फिर आप उसमें से टैक्स माइनस कर दो, उतना ही आएगा. 1,26,000 का 50% कितना आएगा, 63,000. माइनस कर दो 63,000 आप. यानी आपको एक ऐसा अर्निंग बिफोर टैक्स चाहिए था जिसमें से अगर आप 50% टैक्स माइनस करो तो आना कितना चाहिए, 63,000. तो इस केस में आपने उसको डबल कर दिया. लेकिन अगर यही 40% होता तो 100 में से 40 जाता, बचता कितना, 60. सो दिस वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके. अब आपका ईबीआईटी आराम से आ जाएगा 126 प्लस 21, क्योंकि इंटरेस्ट विल बी 21,000. तो ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 1,47,000. क्योंकि यहां ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस हो रहा है, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी इसके साथ. और अब वैल्यू पुट कर दो, आराम से आ जाएगा. ईबीआईटी आपका आया 1,47,000 और इंटरेस्ट आ गया आपका 21,000. सॉल्व कर लो, कितना टाइम्स आ रहा है, मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 1,47,000 डिवाइड बाय 21,000. ये एग्जैक्ट आ रहा है 7 टाइम्स. और ये यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि आइडल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना होता है, आइडल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल बी 6 to 7 टाइम्स. और इस सिचुएशन में कंपनी की पोजीशन बहुत बेटर है, बहुत बेटर है. 6 to 7 टाइम्स बहुत ही रेयर केसेस में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने को मिलता है. ओके. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रिकी क्वेश्चन based on the interest coverage ratio, we almost complete the all types, approximately all the types of the numerical question related to the liquidity ratio and solvency ratio. So ये topic conclude करने से पहले I want to say that कि जितने भी आपने ratios पढ़े हैं उनकी अपनी अपनी importance है. जैसे अगर आपने current ratio पढ़ा है तो it shows the relationship between the current asset and current liability. मतलब कंपनी पास कितनी करंट एसेट्स है कि वो अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सकता है. एंड विद द हेल्प ऑफ द क्विक रेशियो यू कैन सी दैट कि जो हमारा करंट लायबिलिटीज है उसको इमीडिएट हम कितना पे कर सकते हैं. मतलब अगर आज करंट लायबिलिटीज खड़ी हो जाए हमारे सामने कि हमें आज का आज पेमेंट चाहिए, तो क्विक एसेट्स से ही हम उनको पे कर पाएंगे. क्योंकि करंट एसेट्स में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कन्वर्ट करने में टाइम लगता है. सो इसलिए हमें क्विक एसेट्स का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है.
वहीं अगर हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन पे क्वेश्चन उठाता है, मतलब वो हमें उस क्वेश्चन का आंसर देता है कि इस फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट और इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप, प्रोप्राइटरी रेशियो, एसेट्स और शेयर होल्डर फंड के बीच में रिलेशनशिप, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स में कितना पार्ट डेब्ट का है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक फर्म अपना इंटरेस्ट पे करने के लिए कितना कैपेबल, मतलब कितना टाइम्स वो अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है। और इंटरेस्ट कहाँ से पे करते हैं? ईबीआईटी से। सो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट कितना टाइम्स दे सकती है। ओके, सो जितना ज्यादा ये रेशियो होता है उतना हमारे कंपनी के लिए बेनिफिट होता है, बट आइडियल माना जाएगा 6 to 7 टाइम्स। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रेशियो, दैट इज एन यू नो वेरी वेल एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।